This time I'll be showing you how to wash your superbike in a proper manner. In a manner which no one else told you. In many of the YouTube videos I keep seeing that they are using foam washing and whatnot. But many people are missing only one point. That is how to properly wash the bike and then dry the bike. Because drying is very important aspect of washing your costly machines. So that I'll be teaching you. I'll be giving you 2 point of views. One is first person and one is second person. That is the camera, which is filming me at the moment. So I have already mounted my GoPro. So this will give you a detailed view, like how the parts and how the nooks and crannies are getting cleaned. And that camera will give you how I'll be using my Briggs & Stratton 165cc, which is equipped with a plunger pump. I'll be using that machine for first spray washing, like the pressure washing, and after that I'll be using that same machine for foam cannon, because my Karcher HD 511 Cage Classic, it is not I have not bought, I could not find the foam dispenser for that particular model, so I'll get that soon as well. So that will create less noise, but this is engine, so it will create a little bit more noise. So I'll try to keep this video as raw as possible without a lot of cuts or edits, so that you guys can have a first point of first person view of how a bike needs to be washed. So now you all can see that I have used the pressure washer to to wash my bike. There's the first stage of bike washing. You might be seeing that little bit of dirt is still left on this particular area, so that will also be cleaned, but 85% is now clean. There are no loose dirt, there are no debris or road grime or any kind of sand particles, because I stay near to river, so we have the sand particles which actually scratches the body paint. So first there's the first part, and now I'll be starting with the second part, that is the foam. So I'll be using JPT's foam lance, and because it has a quick connector, so it is compatible with my Briggs & Stratton. And this bottle is of Avix, but the liquid I'm using, this is a multi-purpose cleaner, so it is not acidic. I can use it properly. So I used variety of products. I have used this Vavex shampoo as well. I have used Chemical Guys shampoo. I use 3M, Sonax, many of the stuffs. So I'll make a separate video for those things later, that which is the best product. But at the moment I'm using Chemical Guys, Vavex, and Motul products, like there's a chain grease and there's a multi-purpose spray just like WD-40. And then I'll be using this blower machine, which is Bosch GBL 620, for blowing off all the water after the wash. And these are the detailing brushes, but these are a little bit harsh, so never use these brushes for agitating dirt on the paint surface, either matte, either the clear coat ones, the shiny paints, the gloss paint. Always use this on tires, exhaust headers, or the engine lower parts, like that. Never use this on a gloss or the matte. So now I'll be allowing this particular foam to sit on the bike for at least like 1 minute. So for 1 minute I'll not touch it. And always remember one thing, that whenever you're using foam reaches every point, which is very hard to reach when you are trying to use the shampoo using a hand. So this is a better option to actually clean your bike properly. Not an option, actually, you have to clean your bike like this, otherwise you'll not be reaching to the hard spots. It's very difficult. Not even brush, not even anything can reach the inner part of the bike.
So I'll try to show you guys that how, I don't know how much my GoPro can do the justice, but it is very satisfying. You must be seeing that the foam is very rich. Chemical guys is really good. Even Wavix is very good. They also make amazing products. See, I'm allowing the foam to actually sit. I don't know how many of you can feel actually, but I can actually feel that, you know, it is acting on the bike, and you know, feels really good to see. So yeah, I don't have any rings on my right hand. I'm a righty and I'll not be using this hand much, so I've taken all the rings out. So now we will be, you know, using our microfiber towel to do it for the final time, so that कहीं से भी बचे ना. अब आप देख रहे होंगे इसकी एडिशन ज़्यादा अच्छी हो रही है, बिकॉज पहले बार में थोड़ी पोल्यूशन थी, डर्ट थी, इसलिए पूरा वो नीचे आ गया था. तो अभी हम करेंगे आराम से. एंड यू गाइज हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आपको प्रेस करके नहीं करना होता है, बिकॉज मैट पेंट. You have to be, you know, easy on the paint. You can't treat this like gloss paint. तो मेंटेनेंस ज़्यादा होती है. अगर आप लोगों को मेंटेनेंस इतना नहीं करना है या आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, खैर टाइम तो मेरे पास भी नहीं होता है, बिकॉज आई रियली कीप बिजी इन माई केसेस, बट स्टिल आई टेक आउट टाइम टू डू ऑल दिस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू टेक आउट टाइम फॉर योर दीज काइंड ऑफ कॉस्टली पोजीशन. बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे ना तो पता नहीं फिर आप क्या ही कर रहे हो ज़िंदगी में. टाइम तो निकालना पड़ेगा भाई. नोबडी इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड. वी हैव टू टेक आउट टाइम. एंड वॉशिंग पॉइंट्स कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी, बहुत चार्ज करते हैं एंड देन अच्छे से करेंगे भी नहीं. पहले वाला अच्छा करेंगे, 2-3 बार जब जाने लगोगे फिर दे टेक यू लाइक. आई होप ये GoPro अच्छे से दिखा रहा है कि मैं किस तरह से साफ़ करता हूँ चीज़ों को. हर एक पार्ट क्लीन होनी चाहिए. जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि माई बाइक विल लुक ब्रांड न्यू फॉर एवर. इट्स अ गारंटी. फेड होने दे ही नहीं सकता मैं दूंगा ही नहीं फेड होने पे. क्योंकि जिस तरह से मैं केयर करता हूँ हार्डली कोई करता है. करते होंगे हार्डली, हाँ हार्डली इज़ ए करेक्ट वर्ड, बिकॉज 95% लोगों को कुछ भी नहीं पता है. दे जस्ट ओन बिग मशीन्स एंड दे जस्ट टेक इट टू गुड वॉशिंग पॉइंट. एंड गुड है या बैड है वो तो भाई उन्हीं को पता होगा. बट मैंने जितनी भी सेकेंड हैंड मार्केट में बाइक्स देखी हैं, they all have rusting, they all have hot spots. जिसको कवर किया जाता है प्लास्टिक पॉलिश लगा देते हैं ऊपर. मैंने वो भी देखा हुआ है. चमकीला पेंट है, ग्लॉसी पेंट है, बट प्लास्टिक पॉलिश लगा रहे हैं भाई साहब लोग. बहुत लोग विवाद करेंगे, बट आपको अच्छी तरह पता है मैं अपने व्यूअर्स को जो सही है वही बात बताता हूँ. जो मेरे क्लाइंट्स हैं, प्रो बोनो भी बहुत केसेस करता हूँ, बट जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो केस का जो मुझसे लीगल सर्विसेज लेते हैं, उनको भी सही ही गाइड करता हूँ मैं, चाहे उनको बुरा लगे चाहे उनको अच्छा लगे. टायर्स पे आ जाते हैं. और टायर्स में बहुत सारे वॉशिंग पॉइंट्स मैंने देखा है, बंगाल में देखा है. बेसिकली दे ट्राई टू यूज़ डिटर्जेंट क्योंकि ये टायर है. गाइस हमेशा याद रखना, ये जो एलॉय रिम है ना, अगर मैट फिनिश है तो चलो आप नॉर्मली इसको मेंटेन कर सकते हो नॉर्मल वो शैम्पू से एंड ऑल दैट. बट अगर ये ग्लॉसी है तो ग्लॉसी को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आप बॉडी का ध्यान रखते हो, जैसे मैं रख रहा हूँ.
मैंने तो इसमें कोटिंग भी करी हुई है, वो भी खुद करी है, सेरेमिक कोटेड भी, आप देख सकते हो कितनी चमक है इसमें। तो हमेशा मैं अच्छे से रखता हूँ चीज़ों को। अभी तो जस्ट इसने 820 किलोमीटर ही करा है बाइक की, बट स्टार्टिंग से ही अगर आप मेंटेन करोगे ना तो टिकी रहेगी चीज़। अदरवाइज़ क्या होता है ना, ख़राब हो जाने के बाद मेंटेन करके क्या फ़ायदा है, पहले से ही आप मेंटेन करो ना, बेटर है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। इसको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। और आपको एक और चीज़ याद रखना है, धूप में ज़्यादा कभी धोना नहीं है, क्योंकि जो भी आप शैम्पू यूज़ करोगे ना, अगर वो ड्राई आउट हो गया इट लीव ए मार्क। चाहे कैसा भी शैम्पू आप यूज़ करो, कितना भी महंगी शैम्पू आप यूज़ करो, इट ड्राई, इट रूइन द पेंट। सो आप देख सकते हैं मैंने शेड के नीचे है, शेड तो है आज, धूप नहीं है, बट स्टिल हमेशा शेड के नीचे किया करो, ट्राई किया करो, या तो जब धूप नहीं होती तब किया करो। सो आप इसको एक बार सेकेंड वॉश कर देंगे अच्छे से। सेकेंड वॉश करेंगे इसलिए सो दैट अब लास्ट में मैं हेडर्स पे बैठूँ, वो थोड़ा सा टीडियस काम होता है, मेहनत वाली काम है, उसमें वो ब्रशेस यूज़ होंगी, ठीक है। और कौन सी डी स्केलर मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको वही बताऊँगा, ठीक है। इट विल रियली हेल्प यू। हेडर्स बने लोगों के गंदे हो जाते हैं, वो भी गंदा नहीं होना चाहिए, है ना। The focus is basically on the headers। ये जो headers आप देख रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा गंदा नहीं, तो नया ही है, अच्छा ही है, पर थोड़े थोड़े जो स्टेन लगे हैं उसको किस तरह से निकालना है, दैट आई विल बी शोइंग यू। सो आई विल बी यूजिंग द स्केल रिमूवर, ठीक है। ऑटो ब्रोज कंपनी की भी आती है एंड केमिकल गाइज हर किसी कंपनी का आता है, ठीक है। तो आप स्केल रिमूवर थोड़ा सा डाइल्यूट करके यूज़ किया करो, बिकॉज ये लोग कितना भी बोले एसिड फ्री है, मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत एसिड होता ही होगा। So, थोड़ा Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. सो नाउ द वॉशिंग इज़ टोटली कंप्लीट। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत जगहों पे पानी एंड ऑल दैट हो रखा है। ये देखिए क्लीन हो गया, देखिए ये भी कितना सारा स्टेन उठ गया इसमें से, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो पानी है ना यहाँ पे, इसको हम निकालेंगे वॉश के ब्लोअर से। नाउ आई यूज़ टू काइंड ऑफ ब्लोअर, एक तो ये इलेक्ट्रिक वाली हो गया और दूसरी हो गई ये पोर्ट्रॉनिक्स का। हैंड हेल्ड है, उतनी पावरफुल नहीं है, बट इसका थ्रो भी बहुत अमेजिंग, आपको दिखाता हूँ मैं। आई थिंक 1,50,000 RPM पे घूमता है, इट्स वेरी गुड। हैंडी अच्छा है, अगर आपके पास लाइट वाइट नहीं है तो कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आप एक जगह पे भी Ay, qué rico se ve. सो व्हाट वील डू नाउ इज़, पहले हम ना वाइप कर लेंगे एक अच्छा क्वालिटी के माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, ठीक है, जो ज़्यादा GSM वाली होती है। जैसा मैं यूज़ कर रहा था शैम्पू स्प्रेड करने के लिए, वो वाला नहीं, उससे ज़्यादा GSM वाली। तो पहले हम वो वाइप कर लेंगे, उसके बाद हम वापस ड्राई करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि पहले आपको थोड़ा सा इसको डैम्प कर लेना है, अभी तो ड्राई है। दिस इज़ सॉफ्ट स्पन का,
इट्स गुड वन। ठीक है, अभी देखिए पहले आप यहाँ पे जो गीला है ना उसको थोड़ा थोड़ा वाइप कर लीजिए ताकि डैम्प हो जाए कपड़ा। जितना डैम्प होगा उतना ही स्क्रैच नहीं करेगा मैट पेंट को, ये आपको हमेशा याद रखना है थ्रू आउट। कोई भी मैट गाड़ी अगर आप क्लीन करें ना तो पहले इसको डैम्प कर ले हल्का सा। ज़्यादातर लोग वॉश करके ये सब लॉक को ना नहीं पोंछते एंड यहीं से रस्टिंग वस्टिंग स्टार्ट होता है। बिकॉज़ आप ये मत समझिए कि पूरा बाइक एलुमिनियम का है, कुछ कुछ बिट्स ही होंगे इसके एलुमिनियम या जिसको रस्ट प्रूफ प्रॉपर्ली कंपनी किया होता है। ये जो स्विचेस है ना इसको बाद में एयर से भी करेंगे सो दैट इसके एक एक पॉइंट से ना निकल जाए पानी। एंड आई ऑलवेज सेड स्क्रीन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिए। सो आई हैव यूज्ड ए गुड ग्लास प्रोटेक्टर, 2600 का पड़ा मुझे। आपको वाइप ये देखिए, अभी जैसे धूप आ गया ना तो ऐसे धूप में कभी करना ही नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था हमेशा शेडी एरिया में, शेड वाले एरिया में करना है आपको। एंड एक चीज़ याद रखना, ये प्रोसेस ना बहुत टीडियस है एंड दिक्कत तो हो रही है बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी अच्छे से काम करता हूँ तो इतना टाइम मुझे लगता नहीं। आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे टाइम लग रहा है इतना। Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Tell me why you left me bleeding. Died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Lullabies of you still in my head. Someone save me. Bloodshot eyes, can't sleep, I'm rotting in my bed. ये मैंने सारी तरफ मार दिया। अब जैसे ये अंदर में अगर आप देखेंगे ना तो पानी है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला एयर शायद ना पहुँचे बिकॉज उतना टारगेटेड नहीं है वो। अब ये देखिए पतला सा है, अब देखिए आप देखा आप लोगों ने कितना पानी छुपा हुआ था, सब निकल रहा है। बिकॉज़ इसमें क्या होता है ना, ये एक बहुत ही टारगेटेड मशीन है, मतलब एक बहुत फास्ट हवा देता है, कम टाइम हो बट टारगेटेड बहुत है। टारगेटेड मतलब एकदम जो पॉइंट है जहाँ पे आप करेंगे टारगेट तो वहीं पे जाएगा। देखिए कितना पानी टपक रहा है अभी। जितना भी आप हवा मारते हैं तो जो पानी निकल रहा है इंस्टेंटली उसको पोंछना है आपको सो दैट वही चीज़ वापस इधर उधर से ना चला जाए कहीं। नाउ कमिंग टू दिस स्विच गियर्स, यहाँ पे भी ना आपको प्रेशर से ही निकालना है पानी, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होंगे कितना केयर करना पड़ता है। आप देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, एकदम ड्राई हो गया है प्रॉपर से। ये देखिए कहाँ कहाँ से पानी टपक रहा है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बाइक। बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसे वॉश मत करिए, इतना डिटेल वॉश करने से ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए,
जितने लोगों से पूछोगे उतने हज़ारों अनशंट थॉट देने वाले हैं आपको। जो कुछ करते नहीं है ना वही लोग इतना थॉट देते हैं। अब हमेशा देखना, बहुत लोग होंगे जिसको नॉलेज भी नहीं है कि गाड़ी मेंटेन कैसे होती है, वो भी ज्ञान ज़रूर दे रहा होगा क्योंकि उसको थोड़ा हाईलाइट में आना है। तो हर फालतू आदमियों से पूछने की बात छोड़िए, ठीक है। असली आदमी वो होता है जो खुद के मशीन्स को ही अच्छे से चमका के रखता है। उनकी पास आप उनसे पूछा करो जो भी इतना चमका के रखता है। आप मेरी भी देख ही रहे हो, मैं कभी दिख गया अगर आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई वुड लव टू हेल्प। मैं लोगों को हेल्प करने पे बिलीव करता हूँ। एंड कुछ होते हैं जो कि स्पोर्ट्स बाइक ख़रीदने के बाद हीरो बन जाते हैं, है ना। तो उन लोगों से मत पूछिए। So now this is the final look of the vehicle, of the bike. देखिए क्लीन, देखिए कितना है, देख रहे हैं आप। मैट फिनिश मैट ही है, चमक नहीं आई है इसमें। देखिए कहीं पे भी पानी दिख रहा है आपको, पूरा ड्राई है। देखिए देख लीजिए, देयर इज नो वाटर ड्रॉपलेट्स। देखिए इसको बोलते हैं प्रॉपर क्लीनिंग। देखिए ऐसे होना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये थोड़ा सा पानी है, इसको पूछना पड़ेगा। ये देखिए आप, देखिए आप, कहीं पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपको। सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट, ब्रेक सिस्टम को भी क्लीन ही नहीं करता। अब देखिए 800 किलोमीटर चल चुका है, गंदा तो हो ही जाता। अब आप टैंक देखिए, समझ रहे हैं ना कितना क्लीन है। देखिए ये देखिए, इससे ज़्यादा क्लोज व्यू तो आपको मैं नहीं दे सकता बाइक का। दिस इज़ द लास्ट जितना कि मैं क्लोज कर सकता हूँ। देखिए सस्पेंशन देखिए, एक भी हाल ही में ये कल या परसों, कल येस्टरडे इसको मैंने बहुत बारिश में चलाया। अब आप देखिए अंदर के पार्ट्स में भी आप ना हाथ लगा सकते हैं, कोई गंदा नहीं होगा। देखिए नट्स देखिए आप। तो आपको बाइक इस तरीके से रखना है। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें मैं थोड़ा सा मेटल पॉलिश कर दूंगा, बिकॉज मैंने थोड़ा सा वो वाला यूज़ किया इसमें टू क्लीन द पाइप्स, एग्जॉस्ट हेडर्स। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई बी यूजिंग ए गुड मेटल पॉलिशर। ठीक है, मेटल पॉलिशर की ज़रूरत नहीं होगी बट आई यूज़ ए गुड मेटल पॉलिश। हाँ वैसे पॉलिशर भी है मेरे पास बॉश का, बट उसकी अभी आवश्यकता नहीं है बिकॉज इट्स क्लीन। सो आई बी यूजिंग दैट पॉलिश। उसके बाद एक व्यू उसका भी आपको दे दूँगा। देखिए कितना चमक रहा है, किसी की अलॉय में इतनी चमकती है। देखिए अब शोरूम से ही जैसे निकलती है ना वैसा रखता हूँ मैं। आई रियली फील प्राउड कि मैं इस तरीके से मेंटेन कर पाता हूँ चीज़ों को। लुक अमेजिंग इसकी बाइक की। सब बोलते हैं कि नया वाला थोड़ा पतला लगता है। गाइस एवरीथिंग इज अबाउट एरोडायनामिक्स। अगर आपको एरोडायनामिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप ख़राब नहीं बोलेंगे, अगर नहीं है तो पक्का ख़राब बोलेंगे। तो इट्स टोटली फाइन। हाँ, सो नाउ आई विल बी पॉलिशिंग। So as I have used descaler for these headers, so now they need to be polished because क्या होता है ना, थोड़े से होते हैं उसमें वो जो हम यूज़ करते हैं ना, क्या बोलते हैं descaler या कुछ भी, ये सब उसमें थोड़ा बहुत एब्रेसिव्स होता है जो हो सकता है 1 या 2% कर सकता है इस पार्ट को
थोड़ा सा क्लीनिंग करते हुए करूँ। तो उस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ना आपको ये मेटल पॉलिश मतलब ये जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ वेवेक्स का, मेरे पास दूसरी कंपनीज़ का भी है बट ये भी अच्छी है, इट्स गुड वन। ये देखिए यूज़ ए स्पॉन्ज, ये देखिए ब्लैक ब्लैक हो गया, मतलब इसके ऊपर जो एक करोसिव कुछ भी या तो पोल्यूशन कुछ भी होगा वो निकल रहा है, देखिए इसको। ये लगाने के बाद आपको कपड़े से थोड़ा सा इसको रबिंग करना पड़ेगा। अब आप ही मेरे को बताइए वॉशिंग पॉइंट वाले करेंगे इतना? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पैसों से मतलब है यार। देखिए कितना काला हो गया। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। देखिए हाउ गुड दिस इज लुकिंग। आई एम क्लिकिंग ऑन ए मैनुअल मोड DSLR में, इसलिए आई कैन प्ले विथ ऑल द सेटिंग्स सो दैट यू गाइज गेट द बेस्ट व्यू। अब आप देख सकते हैं, आप जस्टिस कर पाएंगे किस लेवल का हेडर को क्लीन किया गया है एंड कितना लग रहा है क्लीन वो। तो आई होप आप सबको पसंद आया ये वीडियो। मैंने जितना पॉसिबल हो पाया है मैंने आप लोगों को दिखाया है एंड कोशिश भी करी है कि बारीकी से आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है वाइल वॉशिंग योर बाइक और कार। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सेम ही प्रोसीजर होता है, वो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें जितना टाइम लगा है ना। सो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छी तरह फॉलो करेंगे इस प्रोसीजर को एंड बॉडी में वॉशिंग 2 बार होता है, ठीक है। एक बार फर्स्ट, फिर उसको थोड़ा सा सेट होने देते हैं, फिर वॉश करते हैं, उसके बाद हम वापस फोम देते हैं, फिर उसको ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फिर वॉश करते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में जितनी भी है आपने सब कुछ देखा है इस प्रोसीजर में, उस चीज़ को आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू शो यू इवन द पॉलिशिंग पार्ट ऑफ द हेडर। तो हेडर भी आप देख रहे होंगे कितनी क्लीन लग रही है, ठीक है। सो क्लीन करने के बाद आपको हमेशा हेडर को एक पॉलिश देना है, मेटल पॉलिश जो होता है। आप ब्रासो भी यूज़ कर सकते हो। सब बोलेंगे अरे भाई क्या बोल रहा है, ब्रासो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। ब्रासो मेटल पॉलिश ही है, ठीक है, सस्ता भी मिल जाएगा, इट्स बेटर। ये बड़ी बड़ी कंपनियों उसका उतना कुछ है नहीं, आप ब्रासो भी यूज़ करिए, इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी और बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। सो आप कर सकते हैं। एंड कहीं पे भी पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है और हार्ड वाटर अवॉइड करना है। यहाँ पे हार्ड वाटर है नहीं, इसलिए उस बात पे ज़्यादा बात नहीं करिए, बट जिनके वहाँ पे हार्ड वाटर है ऑलवेज ट्राई टू यूज़ योर प्रेशर वॉशर। जो जहाँ से आप पानी ले रहे हो वहाँ पे हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी एक चीज़ आती है, वो लगा के ही प्रेशर वॉशर में यूज़ करिए, वरना प्रेशर वॉशर भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपने देखा ही है किस लेवल का डिटेल्ड एक वॉश हुई है आज इस बाइक को। अब इसको स्टार्ट करेंगे एक बार।
गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड मैं इसी तरह से आपको बताता रहूँगा किस तरह से बाइकें मेंटेन करनी है, एंड कुछ बाइक के ब्लॉग्स भी आने वाले हैं, बाइक तो नहीं कार की ब्लॉग्स आने वाली है। डू स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।